identified dowry and resulting indebtedness to poverty as a major issue. Muslim women are still subjected to child marriage, and in this case, severe repercussions on their lives. This is through violations of human rights. Panchayat has resolved to address the issues on war footing with the support of Madras Samajh. The first step was initiated. Discussion with the religious leaders has been taken. All religious leaders have supported the initiative. The next step would be the formation of ward assemblies and discussion with the women's group simultaneously with the men through the community-based organization. Discussion with the Mahal committee in each ward will be taken up. The focus will be building consciousness and consensus of dowry in marriage. Program for mobilization of women against the issue of dowry and public hearing. Women who have undergone the problem will be organized. Women victims of dowry will be extended emotional in the legal support. And this is then will also help reduce the incidence of domestic violence and desertion in rights in the age of marriage. There will be a constant I'm sorry, I have to stop you. Your 5 minutes. Yes. 2 minutes. But you are going on to other points and not what. This is an important issue. We will take dowry-free village. Dowry-free marriage is a website initiative in Kerala Madras Samajh Society under the Ministry of Human Resource Development. Website for dowry-free marriages started on the March 2010 on Women's Day. The TTC was chaired that program respectively. The name of the website is dowry-free-marriage@yahoo.com. We have involved the cases in the dowry-related issues. 380 cases was registered and 190 was settled. Others are now continued the settling. We have also settling through counseling and others are related in the court support. Thank you. Thank you so much. I'm sorry I have to because there's so many people waiting. I had to. I think a very important point ये भी मैं बोलूँ कि जैसे कि केरला में महिलाओं की जायदाद पे हक है, यह प्रॉपर्टी राइट, इसके बावजूद दहेज में जमीन, सोना, कैश, ये सारी चीजें दी जाती है. मैं करेक्ट व्यवस्था नहीं है तो तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और 380 केसेस दर्ज की गई, इसमें से 90 केस काउंसलिंग थ्रू रिजॉल्व हुआ है. तो ये 300 केसेस क्या दहेज के कंप्लेंट्स हैं या वायलेंस के? वायलेंस के. तो इट कमिंग टू सर्कल. दहेज का कोई कंप्लेंट नहीं करता जब तक वायलेंस नहीं होता है. थैंक यू. अच्छा, हाँ, तो इन्होंने एक इनोवेटिव कदम लिया है कि वेबसाइट में जो बिना डाउरी के शादी करने को तैयार है तो वो अपने पार्टनर्स वेबसाइट से जुड़े हैं. थैंक यू. रंजीत विमोचन आप बोलें. हेलो. मैं यहाँ पर चंद बातें रखूँ कि ये बेंगलुरु में कितने दहेज के लिए लड़कों की तादाद में मर रहे हैं, कितने एफआईआर हो रहे हैं, ये तो हर स्टेट से प्रेजेंट करेंगे, ये तो कॉमन है. थोड़ा बहुत आगे पीछे वो से यही मैंने ऑब्जर्व किया है. तो मुझे कहना है कि हम लोग क्या करना है. हर बार हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं. ये हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं. सिर्फ हम कानून पुलिस को ब्लेम कर रहे हैं कि हमें चेंजेस लाना है, कि हमें क्या नया कदम लाना है, और सोसाइटी जो पेरेंट्स हैं वो क्या करना है, इसके बारे में बात करें तो शायद ठीक है. इसके सिलसिले में मैंने हमें एक डॉरी कैंपेन विमोचना से स्टार्ट किया. 1997 से स्टार्ट किया. हाल ही में हमने एक्चुअली मेरा पूरा प्रेजेंटेशन इंग्लिश में था, थोड़ी मुश्किल हुई मुझे
चेंजेस लाने के लिए थोड़ा आगे पीछे होगा। 97 में हमने देखा कि हर बार हर दिन न्यूज़पेपर ने 3 से 4 औरतों की ड्यूटी बर्न्स के चले हुए औरतें या पॉइजन लिया, फिर हैंग हुआ, जो फांसी लेकर, ऐसे केसेस एक पेपर में कोने की तरफ आ जाते थे। फिर हर दिन के 3 केसेस, 4 केसेस, हिसाब लगाने से महीने में 100 केसेस से ज्यादा हो जाते थे। फिर हम विमोचना ने स्टार्ट किया, ये आखिर बात क्या है। फिर हमने पुलिस से रिकॉर्ड, जो CCRP सिटी क्राइम ब्रांच से हमने रिकॉर्ड लिया। सिर्फ ये तो बहुत केसेस थे, हमने एक एज का ये किया, 18 साल से 40 साल तक हमने केसेस लिया, तो स्टडी किया। तो हर केसेस में 100 केसेस में 80 केसेस तो रजिस्टर हो गए, मगर वो ठीक तरह से इंक्वायरी ना होने की वजह से केसेस क्लोज हुए थे। फिर हमने वो केसेस लेकर, एड्रेस लेकर पेरेंट्स से जाकर हमने मुलाकात की, पेरेंट्स से बात किया। तो मगर जो फाइल का पिक्चर है वो तो कुछ स्टेटमेंट है, खाना बना रही थी रात के 3 बजे, सालन गर्म रही रात के 3 बजे, कोई औरत रात के 3 बजे 2 बजे तो नहीं करती ना, पानी गर्म हो रहा था, स्टोव बस्ट हुआ था। इसकी छोटी छोटी कारणों से औरतों के केसेस क्लोज हुए। जब हमने पेरेंट्स से या भाई बहनों से जाकर मुलाकात की तो वो स्टोरी का दूसरा भाग ही कुछ और था कि उन लोगों को डाउरी का बहुत डिमांड था, उन लोगों को बहुत तकलीफें दे रहे थे, परेशानी हो रही थी कि डाउरी एट द टाइम ऑफ मैरिज नहीं है, तो कंटिन्यू शादी के बाद भी। जैसे लड़की गारमेंट्स में, मैं मिडिल क्लास की बात करें, जब गारमेंट्स में लड़की काम करती है तो उसके PS पैसों का डिमांड होता है, उसे लोन देने के लिए। अगर लड़का घर बनाना चाहता है तो उसका फाउंडेशन के लिए पैसा चाहिए, अगर लड़की के नाम पे कुछ पैसा है या जमीन है तो उसके लिए। ऐसे कई चीजों से पेरेंट्स से हमें मालूम हुआ, और उनका दबाव था जो एरिया में बड़े MLA रहते हैं, जो पंचायत के मेंबर रहते हैं, उन लोग, आपकी बेटी तो चले गई, आपको केस करने से कोई फायदा नहीं है, वापस तो नहीं आएगी। अब शायद किसी ने कहा कि उसी आदमी के साथ, उसकी छोटी बहन के साथ शादी या निकाह हो जाएगा। तो ऐसे केसेस निकलने को मिले, और उनका इतना पेन था कि दे वांटेड टू कम, दे वांटेड जस्टिस, उन लोग को लड़ाई लड़ने के लिए थे। फिर हमने ऐसे केसेस, एक पुलिस मीटिंग की कमिश्नर के साथ, हमने बैठा तो पुलिस मानने को तैयार नहीं थी कि ऐसे केसेस 100 से कम है। फिर हमने रिकॉर्ड स्टार्ट किया तो पुलिस के साथ काम करने लगे। 3 महीने के बाद मालूम पड़ा कि हमारा जो रिकॉर्ड है हमारे से ज्यादा उनको केसेस में। फिर हमने 100 केसेस रीओपन किए, उसमें जो पेरेंट्स इंटरेस्ट थे उनको रजिस्टर करने लगाए हम लोग। फिर हम कोर्ट तक उनके साथ ये रहा पुलिस के साथ। पुलिस के लूपहोल्स बहुत से हैं, जैसे जब केस होता है या FIR दर्ज होती है तो ये तो पेरेंट्स के लिए पहला बार है ना, तो हर एक इंसान को पुलिस की एक्सपीरियंस नहीं रहते, स्टेशन के सीढ़ियां नहीं चढ़ते रहते, उनको पता नहीं FIR क्या है, स्टेटमेंट क्या है, फिंगरप्रिंट्स क्या है। जब हम लोग स्टेशन से हम बातचीत करके पुलिस के साथ, जो भी बेंगलुरु सिटी में जो हमारे एरिया में भी पुलिस स्टेशन है जहाँ पर डेथ होती है तो इमीडिएटली विमोचना को इन्फॉर्म करें। विमोचना की टीम जाके जब डेथ जो स्पॉट पर होता है, जिसे कहते हैं माजर, तो लड़की हैंग होकर रहती, वो रूप जो साड़ी में वो फांसी डाल के रहते वो कलेक्ट नहीं करते, और कहा गया है कि तहसीलदार स्पॉट पे आना है। जो 7 साल के अंदर डेथ होती है तो तहसीलदार हैज टू कम टू स्पॉट, और वो माजर करना है कहाँ मार हुआ है। अगर मारपीट होती, जब मारने से पहले लड़की के साथ मारपीट होती तो चूड़ियां टूट के रहते, बाल खड़े रहते हैं उसके, वो सब नहीं कलेक्ट करते। कई बार मैं 2 इंसिडेंट बताऊंगी। एक लड़की का नोट था, आप मानेंगे नहीं, जो पैर का ये हिस्सा होता है, ये हिस्से पे उसने नोट लिखा हुआ था, मगर पुलिस क्या करती है, वो नोट ब्लाउज में रहता है, कभी इसमें रहता है, क्योंकि उसे अंदेशा हो जाता है कि वो उसको मार रहे हैं। वो पहले से ही नोट वो कलेक्ट करके छुपा देती है, और हस्बैंड फैमिली जब आती है, देखो तुम्हारे सर ये है, तुम्हारी फैमिली का नंबर लिखा है, नाम लिखा है, इसने जिसने भी इसे तकलीफ दी है, 2 पेपर पे साइन ले लेते हैं, बोलते हैं कि अगर आप इतना पैसा देते हैं हम लोग को तो हमें ये छुपा देंगे। ऐसे कई केसेस में ये जो विटनेस रहता है, जो एविडेंस रहता है, वो छुपा के जब कोर्ट पे केस आता है तो स्टेशन में ये लिख के रहता, मगर कोर्ट में वो चीज ही गायब रहती है। मतलब केस की बुनियाद है स्टेशन, फाउंडेशन। जिस तरह से घर का हमें पाया डालते हैं, वहां से शुरुआत है। अगर यहीं पर हल गया है केस, स्टेशन में ठीक तरह से उसे
इनवाइट नहीं करके कोर्ट में लाकर हम जस्टिस पूछने का क्या फायदा? पुलिस स्टेशन आना, थाना है में जब एफआईआर करते 3 मंथ्स में चार्जशीट होता है। 3 मंथ्स के चार्जशीट में पुलिस ये हिदायत देती है कि हर तरह का एविडेंस कलेक्ट करो, मगर वो कहाँ करते हैं? माँ बाप एक जो बोलते हैं, क्योंकि हमारे कर्नाटक में कन्नड़ लैंग्वेज है, ये बहुत से केसेस में उन लोगों को कन्नड़ नहीं मालूम होता है, ये बोलते एक है वो लिखते एक है, क्योंकि आगे पैसे लेकर रहते हैं आदमी के, पढ़ के बोलते हैं हाँ तुमने ये बोला हमने लिखा है। जब कोर्ट में वो बारी आती है, वो माँ का स्टेटमेंट कोर्ट में ऑपोजिट लायर जब बोलता है कि तुमने ऐसा कहा ही नहीं, कहाँ है, तो वो हक्की बक्की सी हो जाती है वो, क्योंकि मैंने कुछ कहा था 1 साल पहले। और सबसे बड़ी मुश्किल की बात है केस 1 साल 2 साल के बाद कोर्ट में आता है। जो वजूद, जो जोश जो पेरेंट्स में रहता है वो तो उनकी बेटी जाकर उनमें वो जोश रहता है, मगर जो रिलेशन एट द टाइम ऑफ मैरिज, ये कानून में है ना, लेवा देवी जो हो रहा था वो था, हाँ कोई आएगा, जब जोश रहता है वो बताता है हाँ मैंने बैठा था शादी में, इतने पैसे दिए इतने पैसे लिए। जब कोर्ट की बारी आती है तो वो डर जाता है, अरे मैं कुछ कहूँ तो कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा हिल जाता है। मैं चाहती हूँ कि अगर केस थोड़ा जल्दी से कोर्ट में आ जाए, जो फ्रेश है, कई केसेस में मेरे पास है कि माँ की डेथ हो गई है, बाप की डेथ हो गई, तो कौन एविडेंस है? भाभी भैया आएंगे क्योंकि उनकी फैमिली रहती है, उनके बच्चे रहते, हस्बैंड की फैमिली से उनको थ्रेटन किया जाता है, आपकी बेटी कॉलेज को जाते, अगर आप एविडेंस दे रहे हैं तो हमें उसे रेप करेंगे। कई केसेस हमारे ड्रॉप आउट हो गए। जब इतनी मेहनत करता हूँ स्टेशन से कोर्ट तक लेकर जब एनजीओ हो जाता है, जब कोर्ट की एंडिंग कन्विक्शन टाइम के वक्त अगर सेटलमेंट हो जाता है आउटसाइड, तो हम पूछे क्या करेंगे मैडम, हमारी बच्ची को रेप करने का बोला, मेरे बेटे को मारने के बोले, ये कई वजह, ये हालात है। इसमें हमने पेरेंट्स से मिले, कई केसेस हमने रजिस्टर किए, उसके बाद हमें लगा कि ये सिर्फ यही बाकी नहीं है। फिर हमने औरतों को स्ट्रांग बनाने के लिए नेबरहुड कमेटीज स्टार्ट किए हमने। जैसे हमें 2 एरिया हमारे बेंगलुरु सिटी में बहुत औरतों की तादाद, मरने की तादाद, जिसका नाम है जेजे नगर और ऑल्सो, वहां पर हमने जाकर देखा जेजे नगर पूरा एक पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है, मुसलमानों का एरिया है, उसमें मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, बहुत मारपीट, बहुत से संख्या औरतों की सुसाइड होती है, पर केसेस क्लोज हो जाते हैं। फिर हमने वहां पर अवेयरनेस प्रोग्राम किया, हर गली में 10-10 औरतों को एक ग्रुप बनाया। अगर एक आदमी औरत को पीटता है, सॉरी अगर एक औरत को कोई पीटता है, तुम जाकर एक पड़ोसी जाकर पूछा, अरे भाई क्यों मारे, तुम्हें क्या है, ये मेरी फैमिली है, मेरी औरत है, मैं मां। वही अगर 10 औरतें इकट्ठा होकर जाकर उसे पूछे तो उसको डर लगता है। तो हमने ऐसा प्लान किया कि हर गली में 10-10 औरतों का हमने एक ग्रुप बनाया। आज रात के 12 बजे भी अगर कोई मारपीट कर रहा है तो ये 10 औरतें माशाल्लाह इतने स्ट्रांग हुए हैं उस एरिया में, 10